میں ذرا باڑا مارکیٹ کی ذرا آپ کو تھوڑا ویڈیو میں دکھانا چاہوں گی ذرا ناظرین کے ساتھ, جب آپ لوگ بھی باڑا مارکیٹ کی آپ لوگوں کا چکر لگتا ہے تو یہ اسپیسیفکلی یہ جی امبر جی آپ نے ویڈیو بنا کے دی ہوئی ہے کراکری, یہ کراکری کی. اور میں بھائی آپ دیکھیں پتیلے, فرائی پین دیکھیں, یہ ٹی سیٹ دیکھیں, یہ انٹرنیشنل باڑا مارکیٹ ہے. کیا بات ہے. اور یہ جوتے چیک کر لیں بھائی, کیا حال ہے. السلام علیکم. اوہ یہ لانگ بوٹ چیک کر لیں, یہ بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے. میں نے یہ دیکھ کے میں کہا تھا ہائے میں دیکھو کتنے اچھے یہاں مل رہے ہیں. میں امریکہ سے لٹرلی آپ اگر فیشن کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں نا تو اتنی زبردست چیزیں آپ کو ملتی ہیں کہ آپ یہ مجھے بتا الیکٹرانک بالکل صحیح ہوتی ہیں, بہت اچھی. ہاں میرر چیک کریں دکھائیں گے آپ کو. لائٹس ہیں, ڈسکو لائٹس. وینٹی مرر اتنا مہنگا ہوتا ہے, یہاں پر کتنے کا 2000 کا دے رہا ہے. 2000. اور یہ دوبارہ سے بتائیں, یہ جو باڑا مارکیٹ ہے یہ کدھر ہے جی؟ یہ صدر میں انٹرنیشنل باڑا مارکیٹ آپ لکھیں گے, ایڈریس آ جائے گا پورا. جہاں پہ ایمپریس مارکیٹ ہے نا, ہم تو فرسٹ ٹائم نہیں پتا تھا ایمپریس مارکیٹ کے سامنے ہی ہے. او مائی گاڈ لک ایٹ دس مائک, یہ مائک میرے بچے, کیونکہ ایک بار میں جا کے لے آئی تھی. ایمپریس مارکیٹ ہے, نہیں ایمپریس مارکیٹ کے آگے ہی انٹرنیشنل باڑا مارکیٹ. یہ جو اچھا جی ایک ہمارے ہم نے بھی جب آپ کو باڑا مارکیٹ کے کچھ مناظر دکھائے تو ہم نے یہاں پہ جادو بھی کیا. ہمارے پاس ڈاکٹر وجاہت ایک دم سے باڑا مارکیٹ سے ڈاکٹر وجاہت ایک دم سے باڑا مارکیٹ جادو آپ کو کر کے دکھایا. یہ لنک کیا ہوا ایکچولی ابھی میرے بیگز بڑے سنبھال کے رکھنا, باڑا مارکیٹ سے 3 بیگز بھر کے لا رہا ہوں. صبح چلے جاؤ تو اچھا سامان مل جاتا ہے بھائی, 2 بجے کے بعد کچھ نہیں ملتا. رات بھر تو نہیں باہر بیٹھے رہتے ہو. ابھی ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ which is the best time جب آپ جا کے چیزیں خریدیں. آپ ویسے مجھے بتائیں کہ ڈاکٹر وجاہت آپ جب جاتے ہیں تو آپ جب سستا بازار جائیں یا سنڈے بازار جائیں تو کیا آپ ماسک لگا کے جاتے ہیں, بغیر ماسک لگائے جاتے ہیں؟ نہیں, مجھے کوئی اس میں شرم نہیں ہے. سچی بات ہے کہ وہ بھی ایک آج کل تو وہاں اتنی مہنگی چیزیں ہو گئی ہیں کہ نارمل شاپنگ سینٹر سے زیادہ تو وہاں پہ کاسٹلی چیزیں ہیں. لیکن اگر آپ نے دنیا میں کچھ سفر کیا ہوا ہو, آپ کو تھوڑا بہت برانڈس کا پتا ہو, آپ کو کوالٹی کا پتا ہو, تو آپ کو میرے خیال سے وہاں جانے میں زیادہ مزہ آتا ہے, کیونکہ وہاں پہ جو چیز ملتی ہے آپ کو یہاں پہ کوئی بڑے بڑے برانڈس میں بھی نہیں ملتی. یہی بات کر رہا تھا, ایسا ہی کوالٹی نہیں ملتی, وہ سلائی نہیں ملتی, وہ کپڑا نہیں ملتا. تو بھائی ہم تو ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی اچھی مارکیٹ لگے اور ہم 2-4 ہیں آپس کے گینگ پہنچ جاتے ہیں, کیپ لگا لیتے. تھوڑا سا ٹوپی پہننے سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ تھوڑا سا اپنے آپ کو سیکیور یوں فیل کرتا ہے کہ دھوپ شوپ بھی ہوتی ہے نا. تو لیکن یس, شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے. جب مجھے نور نے بتایا تھا کہ اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے تو میں نے بولا کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو بڑی ہماری جوانی نوجوانی سے ریلیٹڈ ہے. اور خاص طور پہ لڑکے بڑے پرو ہوتے ہیں, ان کو جیسے ہم لڑکیاں ہوتی ہیں نہیں جی ہمیں تو فلانے کے جوتے پہننے ہیں. لڑکے اگر ان کی نئی پاکٹ میں آ رہا انہوں نے کہا وہ جاتے تھے جی ہم تو فلانی جگہ سے جا کے اپنی بوٹ جاگرز اٹھا کے لے اور آپ کہتے ہیں واو کیا پتہ ہے کہ لڑکیاں برانڈ کی کانشیس ہو گئی. لڑکی ہر چیز کی اسٹیو میڈن کے جوتے تھے, یاد ہے میں نے لیے تھے, لیکن وہ گھر جا کے دیکھے میں نے پہنے اس لیے نہیں کیونکہ وہ ایک سائز مجھے بہت تنگ, پاؤں یوں ہو گیا. میں نے ابھی میں خود امریکہ یو ایس اے میں دیکھے تھے, یہ اسٹیو میڈن $190 نلی والا پورا اوپر سلور ڈائمنڈ ٹی اسٹائل وہ کام ہوا تھا اسٹیو میڈن کے. ڈائمنڈ ٹی کا کام ہو اور پسند نہ آئے امبر جی کو. سائز اچھا میرا دراصل کیا ہے, کیونکہ پہلے نا ماشاءاللہ ہر 6 مہینے بعد میں امریکہ جاتی تھی, بیٹی میری وہاں ہے, تو میں وہاں جا کے بھی شاپہولک ہوں پاگلوں کی طرح. تو اب میرے پاس سٹاک اتنے سالوں کا جمع ہے نا, تو اب میں زیادہ تر یہ کپڑے یا جوتے ہوتے نہیں لیتی ہے, بیگز وغیرہ, لیکن جتنی چیزیں ڈیکوریشن گھر کی وہ بھی بہت اچھی ملتی ہیں. چھت کی لگی ہوئی ہے مجھے وہ, باقی جیسے میں نے وہ لیا تھا فرائنگ پین. بازار میں جاؤ تو فرائنگ پین اتنا مہنگا ہے, 9,000 کا. میں نے کتنے میں لیا تھا کہنا 500 یا 1000 کا. میں نے کہا دے دو, اچھا بہت اچھے اس میں برانڈ بھی مل جاتا. سنو میں کل جا رہی ہوں. میرا دل میرا بھی کہہ رہا ہے جانے کے, لیکن کل سنڈے ہے نہیں. آپ کا ڈیلی لگتا ہے, ڈیلی ہوتا ہے یہ, جس میں آپ کو ساری کراکری وغیرہ بھی مل جائے. جی باڑا مارکیٹ تو کھلا ہوا ہے. ایک انٹرنیشنل ہے, ان کو سکھا رہے تھے کہ انٹرنیشنل ہے, وہ صدر میں ہے انٹرنیشنل باڑا مارکیٹ, اور دوسرا جو ہے وہ ہے
सेंट्रल है, सेंट्रल इज होलसेल ब्रांड न्यू। ये वाला जो है ये कौन सा? ये इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल। अच्छा वैसे हम लोग ज्यादातर बात कर रहे हैं कराची की, तो ऑब्वियसली हमें तो पूरे पाकिस्तान में देखा जा रहा है। बिल्कुल। तो मैं लाहौर के हवाले से एक चीज बचपन की मुझे याद है, क्योंकि मैं लाहौर का हूँ नहीं तो मुझे इतना ज्यादा नहीं पता, जो लाहौर में रहने वाले उनको तो ज्यादा पता होगा। बट एक मार्केट है जिसको शाह आलम मार्केट कहते हैं, शाह आलम जिसको कहते हैं, तो वहाँ पे मुझे याद है कि वो होलसेल मार्केट है और वहाँ पे हर चीज मिलती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ये प्री लव जो चीजें होती हैं वो नहीं, लेकिन जो मतलब वहाँ पे आपको किताबें भी मिलेंगी, वहाँ पे आपको डेकोरेशंस का सामान, कपड़ा, क्रॉकरी, आप तो लाहौर की आपको पता होगा, तो वो काफी फेमस मार्केट है। वो सुनो इचरा भी है, इचरा में, लेकिन जब एक बार क्योंकि हमने रॉसल का वो थान खरीदना, मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी, तब मेरी अम्मी के साथ में गई थी शाह आलम मार्केट, लेकिन वो इतना ट्रिकी था ना कि मेरी अम्मी कहती और मेरे अबू भी नेक्स्ट टाइम नहीं आना, ये ट्रिकी बहुत है, यहाँ पे गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है। तो उसके बाद तो उसमें आप मतलब रॉसल का कपड़ा वो आपको होलसेल का, तो वो बड़ा अच्छा, ये नहीं कहा सस्ता, लेकिन हमने अम्मी ने कपड़े थान उठाने थे, काम करवाना था, तो ये कुछ चीजें अम्मी ने वहां से ली थी, मुझे तरह याद है। फिर दूसरा पिछले दिनों मैं किसी से बात करी थी, ये आजकल बड़ा, क्योंकि जब घरों में जो दावतें होती हैं तो बड़े बड़े में सर्व किए जाते हैं, तो बड़े कमाल चीजें आ गई हैं। तो मैं किसी साइट से ऑर्डर कर रही थी, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ से ऑर्डर मत करो, ये तुम शाह आलम मार्केट में करोगे तो मैं एटलीस्ट 10-11,000 तो मैं कम के मिलेंगे। तो अब मैंने ये सोचा हुआ कि अब जब मेरे लाहौर का भी थोड़ा लंबा टाइम हुआ तो मैं जरूर जाके देखूंगी, क्योंकि शाह आलम में वही वाली बात है कि ब्रांड न्यू चीजें मिलती, वो ये नहीं कि आपको क्या कहते हैं प्री लव्ड मिले, लाइक होलसेल मार्केट है, होलसेल मार्केट है, बहुत अच्छी प्राइसेस मिलती हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की निकल के पूरे पाकिस्तान में जाती हैं। आजकल लाहौर की एक बड़ी जनाब शॉप एक बड़ी हिट है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, लेकिन उसमें क्रॉकरी की बड़ी चीजें अच्छी मिल रही हैं। अब मसला ये है कि लोग वहाँ क्योंकि शाह आलम मार्केट जैसी छोटी बाजारों में नहीं जाते, गाड़ी पार्क करने का मसला होता है, लेकिन ये जो चीजें बड़ी बड़ी मार्केट डिफेंस वाले के एरिया में बड़ी मार्केट्स बन गई, वही चीजें जो कि इन जगहों से लेकर आए हुए, तो वो फिर उसके पैसे बढ़ गए। आपका अभी तक का बेस्ट बाय अगर मैं पूछूं? बेस्ट बाय, हाँ बहुत सारी चीजें। अभी रिसेंटली मैंने मुझे वो ट्रैवलिंग करनी थी ना, तो सूटकेस मैंने कहा चलो लेती हूँ। फिर मैंने ये संडे बाजार से, बचत बाजार से सूटकेस लिया मैंने 8,000 का। तो मैंने वीडियो भी बनाई, तो लोगों ने कहा ये तो आपने बहुत महंगा ले लिया। अब वो बाहर का कोई अमेरिकन ब्रांड है, पर्पल कलर का वो लिया, इतने साइज का। मैंने कहा यार ठीक है ना, और ये चलेगा। लिया था 8,000 8,000 वो बताया था उसने, कितने 13,000 का कुछ का बताया था। ब्रांडेड होगा ना, पठानों को ब्रांडेड था वो। कैसे अगर वो आपको बोले ये चीज 20,000 की, तो आपने उससे कम कैसे लेनी है? उसको क्या आप क्या प्राइस पे? बचत बाजार में तो ऐसा 20,000 बोला ना, 3,000 पर आ जाओ, 5,000 बिल्कुल। अब मैं 3 पे आई थी ना, मैं उसे दे दिया 3 पे और जाने नहीं। अच्छा, और शो करो इतने इंटरेस्ट नहीं है, नहीं इतना महंगा नहीं चाहिए हमें, सस्ता ही चाहिए। हम ऐसे आगे चले जाओ तो पीछे से आवाज आएगी ना, इंतजार जरूर करें आप। अच्छा, वहाँ पे कर्टन्स भी कितने अच्छे हैं, वहाँ पे क्लिफ्टन वाले कर्टन्स भी हैं, बहुत प्लांट्स हैं, लेसें हैं, इतनी ब्रांड न्यू इतनी लेस मिल जाती हैं, बटन्स मिल जाते हैं। अच्छा, कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना, अगर आपने इंटरनेशनल ट्रैवल किया हुआ है और आपको एक्सप्लोर ये है कि भाई आपको कौन सा ब्रांड कितने का होगा, तो आपको अगर वो महंगा भी बता रहे हैं ना, तो भी आपको अंदाजा हो जाता है कि यार वो सही बता रहा है, बुरा नहीं बता रहा। अगर फर्ज करो किसी जूते के उसने 10,000 रुपए मांग लिए और आपको पता है कि उसकी कंडीशन लाइक 99% है, और वो इंटरनेशनल मार्केट में वही जूता 1 लाख रुपए का है, तो आप क्या 10,000 रुपए में नहीं लोगे? आप लोग ना, तो वो उस आजकल उस पठान को भी पता है कि ब्रांड कौन सा है, हर उसको ब्रांड का पता है, वो पहले नहीं बता रहा होता, वो बता रहा होता है, कमर्शियल होता है उस ब्रांड। वो किसी अब पठान आप किसी उसमें जाएं, आप स्पेसिफिकली अब खैर अब तो पता चला जी बारकोड भी लेकिन घूम रहे। लेकिन भाई अब मैं अभी यहाँ पे क्लिफ्टन में 2 तलवार के साथ प्लाजा, तो आप वहाँ जाए तो पठान आपको बता रहे थे जी ये फलाना ये सब्यासाची का इंस्पायर्ड है। तो इसको कितना देखो फुल जनाब, ये नहीं पाकिस्तानी दिखा देंगे, से वो पेज खोल देते हैं, कहते हैं ये देखिए, अब बंदा वही इंस्पायर्ड हो जाता है कि यार वाकई। अब फिर उसके बाद वो हमारी काउंसलिंग करते हैं, ले लो, लॉस ना करना, तुम्हारे मतलब की चीजें बंदा कहता। मैं तो हैरान हूँ, बचत बाजार जो ये डिफेंस में ड्रोन था वहां पे, ड्रोन, मैंने कहा ये, कह रहा है बाजी बिल्कुल ठीक है, एक ड्रोन, और उस दुकान पे वो कितने का दे रहा था ड्रोन? आई थिंक
वो 7,000 का, मुझे तो ओरिजिनल प्राइस है 7,000 का ड्रोन कहता है अभी आपको सेल नहीं है। और एक उसके पास जो पियानो, जो बाकायदा रियल पियानो और गिटार जो है बजाते हैं, वो भी ऐसी थी 5-6 हज़ार की। उसका कार्ड भी मैं लेके, उसके पास आयरन भी थी जो मैं बहुत अच्छी वाली टॉप ऑफ द लाइन आयरन, मैं कभी डायसन नहीं दी गई है, डायसन वो ये वाली इस्त्री है। मैंने पूछा डाई कहता अभी नहीं, वो भी आ जाएगा। तो अब उसका नंबर देखती मैंने फीड किया नहीं किया, मैं कहा जब आए तो मुझे बताना। आपका वैसे अभी तक बेस्ट बाय आपका क्या है? यार इतवार बाजार मुझे तो याद नहीं, छोटा मोटा इतना लेते रहते हैं ना बेस्ट बाय। मैंने एक दफा बहुत शुरू में जब वो पुराना लगता था तब मैंने एक कारपेट लिया था हैंड वोवन, ठीक है ना, ला के उसको ड्राई क्लीन करा के धुलवा के, मम्मी कहती थी खबरदार फजूल जर्म्स होते हैं, ये होता है ना मम्मी, मगर मुझे अच्छा लग रहा था तो वो मैंने एक लिया था जो कि बेहतरीन। अब अगर वो देखो तो कितने हजारों लाखों में है मतलब कारपेट्स, तो वो आए भी थे। चल रहा है, सही चल रहा है, लपेट लपूट के रख दिया? नहीं बेहतरीन चल रहा है। तो वो मैंने एक लिया था, मुझे जो याद है। बाकी ज्यादातर ये क्रॉकरी ले ली, कुछ ले लिया, कोई याद छोटी मोटी चीज। डॉक्टर फरहाद आपकी बेस्ट बाय अब तक की क्या चीज है? मैं सोच रहा था जब आपने किरण से पूछा तो मैं पास में चला गया ना, फेज 8 में लगता था और विंटर्स होते थे तो पहले हम नाश्ता करते थे कहीं पे, उसके बाद जाते थे फेज 8। तो मुझे म्यूजिक का हमेशा शौक था। कीबोर्ड्स उस वक्त मार्केट में बहुत महंगे थे, तो वहाँ पे मैंने वो कीबोर्ड जो तकरीबन $1,00,000-1,15,000 का था, यामाहा का PSR सीरीज का, वहाँ मैंने वो 15,000 रुपए का लिया था। 15? यकीन करो 100? 15,000। और उस वक्त उसने बोला ये ठीक है, तो मुझे उस पर यकीन नहीं आया। मैंने कहा कैसे ठीक हो सकता है, बंद पड़ा है। उसने बोला ये अडॉप्टर है, लेकर आया गुस्से में, कहता है अभी यहाँ बैठो और इसको चलाओ। मैंने कहा मैंने सारी कीज देखी कि अब 15,000 रुपए का मैं ले आया, लेकिन मैं 1 महीने तक डरता रहा अभी खराब होगा, अब खराब होगा, ये 15 का हो नहीं सकता। तो फिर मेरा एक दोस्त है, उससे मैंने पूछा वसीम न्याज, तो उसने बोला भाई कि आप बात कर रहे हो, तूने 15 का ले लिया। जब उसने इस तरह की बात की तो मैं खुश हुआ। फिर मैंने एक स्पीकर लिया था बड़ा, मैंने मार का सरंजाम दे दिया। हाँ, और वो चलता रहा आज तक, पड़ा हुआ है वो। मेरा ख्याल से वो इम्पोर्टेड था, ओरिजिनल था कि लॉर्ड शॉर्ट में आ गया होगा, स्मगल हुआ और है ना। उसके बाद एक स्पीकर लिया था, स्पीकर था वो तो मैंने बहुत ही बड़ा छक्का मारा था। 2,000 रुपए का स्पीकर था बड़ा, जो मार्केट में कोई 40-50 हज़ार रुपए का। अच्छा मजे की बात क्या है, आसिम की मैं बात सुन रहा था ब्रांड की और चीज की, मैं इसको ही कंटिन्यू यूं करूंगा। आप जब सोच के कुछ जाते हैं ना कि मैंने ये लेना है, वो कुछ नहीं मिलता। हाँ, ये तो ये है, आप लेने कुछ जाएं और नजर कुछ आता है तो इस तरह हो जाता है। एक मैंने बाइसिकल भी वहां से खरीदी थी, हाँ जी, माउंटेन बाइक तैयार खड़ी, व्हाइट कलर की, मोटे टायर। मैंने कहा और क्या चाहिए। मैंने उससे रेट पूछे, वही वाली बात है, आधे कट मारा। कट के बाद उसने या तो मुझे बेइज्जत करना था या तो बार्गेन अच्छा हो गया, और वो फिर मैंने ले ली। तो ये 3 चीजें मेरी जिंदगी की। हाँ, दुकान में गई ना, उसके पास भी इतनी चीजें थी इलेक्ट्रॉनिक की। अच्छा साइकिल वाला तो हैरान है कि साइकिल वगैरह भी मिल जाती है। कोविड के टाइम में वैसे साइकिल्स कितनी महंगी हो गई। माउंटेन बाइक उस वक्त 30-35 हज़ार की थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 2014 की। फेज 8 वाले की बात कर रहा हूँ उस वक्त। और अब उस वहां पे इतनी सस्ती मिल गई, पता नहीं क्या होता है, उनके क्या दिमाग बना हुआ होता है। लेकिन बाज़ औक़ात आप वाकई होता है ना कि उन्होंने जगह खरीदी है तो उनको चीजें निकालनी है, तो उनको बेचते हैं। उनको पता है कि शायद ये अच्छा ग्राहक आ गया है, ये तो इंटरेस्टेड भी है, पता नहीं आगे वाला इंटरेस्टेड हो ना हो। अच्छा, इंग्लैंड मैनचेस्टर में मैं रहा काफ़ी, क्योंकि मैं डॉक्टर वहीं पे पढ़ाई शायद, तो वहाँ पे ट्यूसडे को लगता था सेकंड हैंड मार्केट, और वो भी बड़ी फैसिनेटेड होती थी। और वहाँ पे लड़के लड़कियाँ सनलाइट लेने आते थे। डॉक्टर साहब मैं भी ये बता रही हूँ कि अब तो बाहर वेस्ट में भी थ्रिफ्ट स्टोर्स लाइक आर गेम, एग्जैक्टली, बड़ी गेम आप लोग जाते हैं थ्रिफ्ट स्टोर से चीजें लेकर आते हैं। अच्छा मिसेस शायद कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मदिया कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? टॉपिक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टॉपिक बहुत बेहतरीन है और खुशी इस बात की है कि आपने सेलिब्रिटीज को बिठा के ये बात की है, वरना लोग तो इन बाजारों में जाना बहुत ही ऑकवर्ड फील करते हैं। और अगर फैमिली में पता चल जाए ना तो वो फिर कहते हैं कि अच्छा यहाँ जाते हो। मैं ये जो डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे हैं तो मैं उस हवाले से बात करना चाहती हूँ कि मैंने अपने बेटे के लिए पूरा सिस्टम खरीदा है। ये ऑर्केस्ट्रा का मतलब पूरा सिस्टम खरीदा है 26,000 में, सही है। और वो डब स्टैप म्यूजिक बनाते हैं और वो एक बहुत फेमस कंपनी में म्यूजिक कंपनी में जॉब करते हैं। तो उनके लिए मैंने खरीदा है। और बिलीव करें कि जब उस कंपनी वालों को ये बात पता चली ना तो वो हैरान हो गए, कह रहे हैं ये तो लाखों की चीज है। और उसके जो हैं स्पीकर्स
वो खाली स्पीकर ही मेरा ख्याल है 98,000 या 1 लाख रुपए के हैं, और वो मैंने पूरा सिस्टम खरीदा है, मेरे बेटे का रोजगार चल रहा है। और ये मैंने खरीदा था नागन चौरंगी पे, सेकेंड हैंड मार्केट लगती है संडे को, लेकिन अब वो बंद हो गई और बहुत सारों का रोजगार खत्म हो गया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं फिर उसके लिए कुछ लेने गई थी तो पता चला कि वो बंद हो गया है, वो मार्केट अब वहां नहीं लगती। तो बड़े लोग दुहाई दे रहे थे कि हमारे तो रोटी रोजी थी, हम तो काम करते थे। तो एक रिक्वेस्ट है कि ये जरा आगे पहुंचाएं मेरी कंप्लेन के भाई ये बाजार लगने दें। बहुत सारों का रोजगार के साथ साथ हम जैसे लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है कि हम यहाँ से चीज खरीदते हैं। तो ये आपका प्रोग्राम वाकई बहुत अच्छा है आज का, मुझे बहुत फैसिनेट किया ये प्रोग्राम, इसलिए कि ऐसे टॉपिक्स को कोई और चैनल छूता नहीं है। उनको लगता है कि इस तरह के टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज शायद, क्योंकि देखिए ना, हम मसला ये कि हम बड़े कॉम्प्लेक्स शुदा कौम है। हम एक बंदा जो कि अंग्रेजी में बात कर रहा हो लेकिन वो गलत बात कर रहा हो, हम उससे वक़्त देंगे, हम कहेंगे नहीं यार अंग्रेजी में बात कर रहा है। जो अपनी जबान में, लोकल जबान में बात कर रहा है, किसी बोली में बात कर रहा है और सही बात कर रहा है, हम उसको इतनी इज्जत नहीं देंगे, क्योंकि वो एक नॉर्मल, हमें लगता है नहीं यार ये कौन सी पता, अंग्रेजी में बात कर रहा तो समझ में भी आती ना। तो ये बड़ा मसला है, हमारे कॉम्प्लेक्सेस ये बहुत हैं।